अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। यासिर इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको एक बार फिर वेलकम करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो मेरे करंट सब्सक्राइबर हैं वो तो जानते हैं कि मैं बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ। लेकिन जो नए सब्सक्राइबर हैं या जो नए व्यूज़ हैं वो देख रहे हैं, वो तकरीबन जान जाएंगे कि मैं किस किस्म की वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही ख़ास होने वाली है। तो देखते हैं कि आज की वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ CSS एग्ज़ाम या किसी भी किस्म का कोई भी एग्ज़ाम जो आप जॉब के लिए देना चाहते हैं, या किसी भी किस्म के लिए, मतलब वो एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, FSC, उसके बाद बैचलर, कुछ भी आप किसी भी किस्म का वो इम्तिहान देना चाहते हैं, अगर आप मेरी एक वीडियो ये वाली देख लें तो मैं 90% श्योर हूँ कि आप इसको बआसानी, किसी भी एग्ज़ाम को बआसानी पास कर जाएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहली बात कि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। आपके पास टाइम होना चाहिए इस वीडियो को देखने के लिए, और आपको आराम से तसल्ली से इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है। और इस वीडियो में कोई एक मिनट ऐसा मैंने नहीं डाला कि जो फजूल हो, या कोई एक सेकंड मैंने तकरीबन ऐसा नहीं डाला जो फजूल मैंने डाला हो। इल्म से भरी पड़ी है ये वीडियो, मेरी मेहनत है इस वीडियो में। आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। और जो व्यूज़ मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली इस तरह की नई और इन्फॉर्मेटिव अच्छी दिलचस्प वीडियो आपको मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अच्छी लगे ना लगे, यकीनन अच्छी लगेगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। प्लीज़ 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 500 लाइक इस वीडियो पे होने चाहिए, कम से कम 500 लाइक, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरी बहुत मेहनत की गई है इस वीडियो में, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और उनके जवाब क्या हैं। सबसे पहला सवाल आता है जी, हु रीजन इज कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ मुगल्स? आंसर, शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 2, ज़िया-उल हक tomb oath as President of Pakistan on? Answer, 23 March 1985. Question number 3, Muhammad Khan Junejo took oath as PM of Pakistan. Answer, 23 March 1985. Questions, when 8th amendment was approved by Senate? Answer, October 31, 1985. 8th Amendment introduced to NA. Answer, 30 September 1985. Question, first discovered oil field? Answer, Toot. Question, gypsum more resources in? Answer, Varcha. Question, velocity of light first measured by? Answer, Rumor. Questions, vitamin that can be stored in liver? Answer, vitamin A. Question, brass is alloy of? Answer, copper and zinc. Question, Lyra is the currency of? Answer, Turkey. Question, which is the second largest city of Pakistan? Answer, Lahore. Question, Pakistan Tehreek-e-Insaf was founded on? Answer, 25 April 1996. Question, which is the biggest continent in the world? Answer, Asia. Question, who gave title of Quaid-e-Azam to Muhammad Ali Jinnah? Answer, Maulana Mazharuddin. Question, how many surah starts with Alhamdulillah? Answer, 5.
Question. National river. Answer. River Indus. Question. National tree. Answer. Cedrus deodara. Question. National vegetable. Answer. Ladyfinger. Question. National airline. Answer. PIA. Question. Who discovered penicillin? Penicillin. Answer. Alexander Fleming. Question. Napier is a city in which country? Answer. New Zealand. Question. In which country is the ancient of city of Taros? Answer. Turkey. Question. What is measured by an ammeter? Answer. Electric current. Question. Which is larger, Norway or Finland? Answer. Finland. Question. Mount Logan is the highest peak in which country? Answer. Canada. Question. What is the main port of Italy? Answer. Genoa. Question. What is the capital of Libya? Answer. Tripoli. Question. The river Danube rises in which country? Answer. Germany. Question. Indus originates from Tibet near? Answer. Mansarovar Lake. Question. In which state is Harvard University? Answer. New Jersey. Question. Silicon Valley is located in? Answer. California, USA. Question. Cholera caused by? Answer. Vibrio cholera. Question. K2 height? Answer. 8611. Question. 1 yard? Answer. 9144 meter. Question. State of liberty? Answer. USA. Question. War and Peace written by? Answer. Leo Tolstoy. Question. Name of senates who first came in Lahore? Answer. Sheikh Ismail. Question. Faisalabad is also known as? Answer. Manchester of Pakistan. Question. Founder of Israel was? Answer. David Ben Gurion. Question. When Pakistan Baitul Mal was established? Answer. 1922. Question. Decibel is a unit to measure? Answer. Intensity of sound. Question. Bill Gates' wife name? Answer. Melinda. Question. Normandy is in? Answer. France. Question. Printing press? Answer. Gutenberg. Question. Oldest barrage of Pakistan? Answer. Sakkar Barrage. Question. Caries specialist is? Answer. Dentist. Question. Ascorbic acid? Answer. Vitamin C. Question. Hottest planet? Answer. Venus. Question. Pride and Prejudice written by? Answer. Jane Austen. Question. Capital of Ghana? Answer. Accra. Question. Adam Mount? Answer. Sri Lanka. Question. Electron discovered? Answer. J.J. Thomson. चंद और सवाल हैं, ये देख लेते हैं। ये पाकिस्तान के बारे में हैं जो इस वक्त मौजूदा क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये हम देख लेते हैं। पाकिस्तान प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ
जनरल कमर जावेद बाजवा, चीफ ऑफ नावल स्टाफ एडमिरल जफर अब्बासी, एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर, चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी, लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ, लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट राजा जफरुल्लाह, गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मिस्टर खालिल जावेद, प्रेसिडेंट AJ&K सरदार मसूद खान, प्राइम मिनिस्टर AJ&K राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर खान, चेयरमैन PCB एहसान मानी, चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल हुसैन, चेयरमैन नैब जावेद इकबाल, डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मंडीवाला, DGISI जनरल फैज़ हमीद, DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, UN रिप्रेजेंटेटिव मुनीर अली मलिक, SSP CID पुलिस सैयद मोहम्मद अली रज़ा, लीडर ऑफ हाउस एंड सेनेट शाहजाद वसीम, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा। उसके बाद ये चंद और सवाल हैं, ये आप देख लेते हैं। पुलिस मतलब किसका मुखाफफ है, इस तरह के ये कुछ हैं नाम, ये मैं पहले बोलूँगा फिर आगे आपको बताऊँगा कि कौन सा लफ्ज़ किस सेंटेंस का मुखाफफ है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है पुलिस, पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल एमरजेंसीज, VIP वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन, SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर, BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, CID क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, CSP सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान, CSS सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, फाना फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड नॉर्थर्न एरियाज, फाटा फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GHQ जनरल हेडक्वार्टर, FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ISPR इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन, ISSB इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लाम कॉन्फ्रेंस, PCS पब्लिक सर्विस कमीशन, सारक SAARC साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, SSG स्पेशल सर्विस ग्रुप, UNICAEF यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, वासा वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी, ISAF इंटरनेशनल सिक्योरिटी एसोसिएशन फोर्स, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसके बाद ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, लेज़र लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, राडार रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, एड्स एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, DNA डीऑक्सी बोन्यूक्लिक एसिड, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, KHZ किलोहर्ट्ज़, KV किलोवोल्ट, नादरा नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, LED लाइट इमिटिंग डियोड, HTTP
हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो उसके बाद ये कुछ और सवाल हैं। पाकिस्तान ज्वाइंट विच ऑर्गेनाइजेशन इन विच ईयर। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन के ईयर भी साथ मैंने लिखे हुए हैं, तो ये भी आपको बता देता हूँ। नंबर 1, पाकिस्तान ज्वाइंट UNO ऑन 30 सितंबर 1947। रिपीट करता हूँ, पाकिस्तान ज्वाइंट UNO ऑन 30 सितंबर 1947। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी ये नंबर 2 आ गया। पाकिस्तान ज्वाइंट ILO इन 1947। रिपीट, पाकिस्तान ज्वाइंट ILO इन 1947। नंबर 3, पाकिस्तान ज्वाइंट FAO इन 1947। नंबर 4, पाकिस्तान ज्वाइंट UNESCO in 1949. Number 5, Pakistan joined World Bank in 1950. Number 6, Pakistan joined IMF in 1950. Number 7, Pakistan joined SEATO in 1954. Repeat, Pakistan joined SEATO in 1954. Number 8, Pakistan left SEATO in 1973. Repeat, Pakistan left SEATO in 1973. Pakistan joined CENTO in 1955. Number 10, Pakistan left CENTO in 1979. Number 11, Pakistan joined OIC in 1969. Number 12, Pakistan joined NAM in 1979. Number 13, Pakistan joined SAARC in 1985. Question number 14, Pakistan joined WTO in 1995. Number 15, Pakistan joined SCO in 2017. उसके बाद ये चंद और मैं आपको MCQs बताता हूँ। ये मैं जितने भी MCQs आपको बता रहा हूँ ये सब स्टूडेंट्स ध्यान में रखें कि ये कोई अगर आपने एक वीडियो देख लिया एंड तक तो यकीन से कह सकता हूँ कि CSS पास करना आपके लिए इतना मतलब मुश्किल नहीं बन सकता, ये इंतहाई आसान हो जाएगा आपके लिए। तकरीबन मैं इस वीडियो में आपको तकरीबन कह सकता हूँ, यकीनन तो ना कह सकता कि मैं आपको सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, लेकिन तकरीबन मैं आपको इसके सारे क्वेश्चन इस वीडियो में बता रहा हूँ। एक दो वीडियोस मेरी और हैं, वो उनका लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी देख लीजिएगा। वो तो छोटी छोटी वीडियो हैं 5-5 मिनट की। तो ये जो वीडियो है ना, इसमें मैं आपको सब MCQs बता रहा हूँ। इनको आपने वीडियो को अच्छी तरह से देखना है। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आ रही आप इसे रिपीट करें, लेकिन अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरह देख ली है 1 घंटा 2 लगा के, जितनी मतलब ये वीडियो है थोड़ी सी, इतनी ज़्यादा नहीं है, लोग पता नहीं कितने साल लगा लेते हैं इसके पीछे CSS के टेस्ट के लिए। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप काफ़ी सिलेबस कवर कर जाते हैं इस वीडियो से। तो दुआओं में भी याद रखिएगा। तो चलते हैं आगे बाकी क्वेश्चन जो बचे हैं उनको देखते हैं भला क्या हैं वो। तो ये क्वेश्चन है, विच सी इज़ कनेक्टेड विद पाकिस्तान। आंसर, अरेबियन सी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन जैकबाबाद। आंसर, 53 सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 3, विच एरिया रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल इन पाकिस्तान। आंसर, मरी। क्वेश्चन नंबर 4, which is the largest desert in Pakistan? Answer, Thar. Question number 5, what is the area of Balochistan? Answer,
347056 square kilometer. Question: what is the area of Punjab? Answer: 205344 square kilometer. Question: what is the area of Sindh? Answer: 140914 square kilometer. Question: what is the area of KPK? Answer: 74,521 square kilometer. Question: where is the largest irrigation system of the world is situated? Answer: Pakistan. Question: which dam is largest electricity generating potential in the world? Answer: Tarbela Dam. Question: on which river Kalabagh Dam is supposed to be built? Answer: Indus River. Question: which is the longest river of Pakistan? Answer: Indus River. Question: which is the largest province of Pakistan? Answer: Balochistan. Question: what is the name of Pakistan-Afghanistan border? Answer: Durand Line. Question: which country is located in the southern west of Pakistan? Answer: Iran. Question: what is the length of Pakistan-Iran border? Answer: 805 km. Question: which of the following is the highest point in Pakistan? Answer: K2. Question: what is the height of K2? Answer: 8611 meters. Question: what is the original name of K2? Answer: Godwin Austen. Question: what is the length of Pakistan-India border? Answer: line of control. सॉरी ये सवाल होना था What is the name of Pakistan-India border? Answer: line of control. Question: which country is located in north of Pakistan? Answer: China. Question: what is the length of Pakistan-China border? Answer: 585 km. Question: which country is situated in northern west of Pakistan? Answer: Afghanistan. Question: what is the length of Pakistan-Afghanistan border? Answer: 2252 km. Question: total area of Pakistan? Answer: 796096 square kilometer. Question: in which continent of world Pakistan is situated? Answer: Asia. Question: at which side of Asia Pakistan is located? Answer: Southern Asia. Question: how many countries are there in South Asia? Answer: 7. Question: with how many countries Pakistan shares her border? Answer: 4. 10 most powerful intelligence agencies around the world. Number 1, ISI, Inter-Service Intelligence, founded 1948, country Pakistan, headquarter Islamabad. Number 2, RA, Research and Analysis Wing, founded 1968, country India, headquarter New Delhi. Number 3, Mossad, Ha Mossad Lamodian Yuli Tafkandian, founded 1949, country Israeli, headquarter Tel Aviv.
Number 4, CIA, Central Intelligence Agency, founded 1948, country USA, headquarter Fairfax, Virginia. Number 5, M16, Military Intelligence Section 6, founded 1909, country UK, headquarter London. Number 6, GRU, Main Intelligence Agency, founded 1918, country Russia, headquarter Moscow. Number 7, MSS, Ministry of State Security, founded 1983, country China, headquarter Beijing. Number 8, BND, Bundesnachrichten Dienst, founded 1956, country Germany, headquarter Pullach and Berlin. Number 9, DGSE, General Directorate for External Security, founded 1982, country France, headquarter Paris. Number 10, ASIS, Australian Secret Intelligence Service, founded 1952, country Australia, हेडक्वार्टर सनबेरिया। उसके बाद आते हैं पाकिस्तान के हवाले से कुछ सवाल, तो वो देखते हैं कौन कौन से सवाल हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है जी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, और वो पूरे चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान में अब तक पाकिस्तान की तारीख में जितने भी चीफ जस्टिस गुजरे हैं उनका दौर हम बताएंगे कि वो कौन कौन से साल में कौन कौन सी डेट को बने थे और कौन सी डेट को रिटायर्ड हुए। तो ये चंद एक नाम है, वो भी आपको बता देते हैं जितना यार आपका फ़ायदा हो जाए। हमारी भी कोशिश होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएं। तो चलते हैं देखते हैं कौन कौन सी चीफ जस्टिस थे। नंबर 1, जस्टिस सर अब्दुल राशिद, जो 7 जून 1949 से 29 जून 1954। जस्टिस मोहम्मद मुनीर 29 जून 1954 से 2 मई 1960। जस्टिस मोहम्मद शहाबुद्दीन 3 मई 1960 से 12 मई 1960। जस्टिस AR कॉर्निलिस 3 मई 1960 से 29 फरवरी 1968। जस्टिस डॉक्टर शेख अब्दुल रहमान 1 मार्च 1968 से 3 जून 1968। जस्टिस फजल अकबर 4 जून 1968 से 17 नवंबर 1968। जस्टिस हमूदुर रहमान 18 नवंबर 1968 से 31 अक्टूबर 1975। जस्टिस मोहम्मद याकूब अली 1 नवंबर से 1975, 1 नवंबर 1975 से 22 सितंबर 1977। जस्टिस शेख अनवारुल हक 23 सितंबर 1977 to 25 मार्च 1981। जस्टिस मोहम्मद हलीम 23 मार्च 1981 to 31 दिसंबर 1989। जस्टिस मोहम्मद अफजल जिल्ला 1 जनवरी 1990 to 18 अप्रैल 1993। जस्टिस डॉक्टर नसीम हसन शाह 17 अप्रैल 1993 to 14 अप्रैल 1994। जस्टिस साद सऊदियान 15 अप्रैल 1994 to 4 जून 1994। जस्टिस सज्जाद अली शाह 5 जून 1994 to
2 December 1997. Justice Ajmal Mian, 23 December 1997 to 30 June 1999. Justice Saeed-ur-Rahman Siddiqui, Justice Saeed-ur-Rahman Siddiqui, 1 July 1999 to 26 January 2000. Justice Arshad Hassan Khan, 26 January 2000 to 6 January 2002. Justice Muhammad Bashir Jahangiri, 7 January 2002 to 31 January 2002. Justice Sheikh Riaz Ahmed, 1st February 2002 to 31 December 2003. Justice Nazim Hussain Siddiqui, 31 December 2003 to 29 June 2005. Justice Iftikhar Muhammad Chaudhry, 30 June 2005 to 9 March 2007, जो मुअत्तल कर दिए गए थे। जस्टिस जावेद इकबाल, 9 मार्च 2007 से 24 मार्च 2007। जस्टिस राणा भगवान दास, 24 मार्च 2007 से 20 जुलाई 2007। जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, 20 जुलाई 2007 बहाल कर दिए गए से 3 नवंबर 2007 सदर परवेज़ मुशर्रफ ने मुल्क में हंगामी हालात नाफिज करके मुअत्तल कर दिया, मतलब कि उनको दोबारा मुअत्तल कर दिया गया। पहले मुअत्तल हुए थे 9 मार्च 2007 को मुअत्तल हुए थे पहली दफ़ा, और फिर दोबारा का मुअत्तल हुए 3 नवंबर 2007 को फिर मुअत्तल हो गए। अब्दुल हमीद डोगर, 3 नवंबर 2007 से 21 मार्च 2009। जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, 22 मार्च 2009 से 11 दिसंबर 2013। जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी, 12 दिसंबर 2013 से 6 जुलाई 2014। जस्टिस नासिर उल मुल्क, 7 जुलाई 2014 से 16 अगस्त 2015। जवाद एस ख्वाजा, 17 अगस्त 2015 से 9 सितंबर 2015। अनवर ज़ुहैर जमाली या अनवर ज़हीर जमाली, 10 सितंबर 2015 से 30 दिसंबर 2016। मियां साकिब निसार, 31 दिसंबर 2016 से 17 जनवरी 2019। आसिफ सईद खान खोसा, 18 जनवरी 2019 से 20 दिसंबर 2019। उसके बाद ये चंद इस्लामिक नॉलेज के हवाले से क्वेश्चन हैं, तो ये भी आपको शेयर कर देता हूँ। मैंने पहले भी आपको कहा है कि मैंने आज की वीडियो में जो ये बातें आपको बतानी हैं, आपने इनको गौर से सुनना है, अच्छी तरह सुनना है, इनको माइंड में बिठा लें। समझ नहीं आती वीडियो रिपीट करें, लेकिन इस वीडियो को अगर आप अच्छी तरह देख लेते हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपके 100 में से 40% जो क्वेश्चन है ना, वो आपके हल हो जाएंगे, वो सॉल्व हो जाएंगे। आप बिना टेंशन के बस एक वीडियो को इसको शुरू से लेकर एंड तक अच्छी तरह देख लें, बस आपके तकरीबन 40% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इससे, वो भी CSS के एग्ज़ाम के, जो कि इंतहाई मुश्किल तरीन एग्ज़ाम होता है। तो चलते हैं आगे, आपको बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इस्लामिक हैं, वो भी आपको शेयर करता हूँ। द बैटल ऑफ खंदक इज़ आल्सो नोन बैटल ऑफ एजाब। नंबर 2 क्वेश्चन, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का वाज टुक प्लेस ऑन 20 Ramzan। क्वेश्चन नंबर 3, बैटल इन विच प्रॉफिट नॉट पार्टिसिपेटेड इज नाउ एज सारिया। क्वेश्चन नंबर 4, Hazrat Hamza was the first commander of Ansar Islamic Army।
Question number 5. In Uhud battle, Muslim women participated. Answer. Firstly. Question number 7. Battle of Mota was the first. Answer. Non-Arab war. Question number 8. Old name of Makkah was. Answer. Bakka. मक्का एम से शुरू होता है जबकि बक्का बी से शुरू होता है. ओल्ड नेम ऑफ मदीना वाज यसरब. क्वेश्चन. हजरत बिलाल वाज द फर्स्ट स्लेव टू. आंसर. रिवर्ट टू इस्लाम. क्वेश्चन. बिफोर काबा प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू प्रे टुवर्ड्स. आंसर. मस्जिदुल अक्सा. क्वेश्चन. वुज़ू के कितने फ़राइज़ हैं. आंसर. 4 फ़राइज़ हैं. क्वेश्चन. गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं. आंसर. 3 फ़राइज़ हैं. क्वेश्चन. इसराइल वाज द इक़ाब ऑफ. आंसर. हज़रत याकूब. क्वेश्चन. Batha Valley is situated in Makkah. Question. Hajj is not completed unless you go to Arafat. Question. Chromosome was discovered by Valdier. Question. Purity of milk measured by. Answer. Lactometer. Question. Which planet has 2 moons. Answer. Mars. Question. Which is largest organ of body. Question. Answer. Skin. Question. Status quo means. Answer. The existing state of affairs. Question. The headquarters of ICJ International Court of Justice lies in. Answer. Netherlands. Question. In MS Word, short key Control plus W is used for close the front window. Question. To repeat the last action in MS Word, the shortcut key is F4. उसके बाद ज़कात के मुतल्लिक़ इंतहाई अहम मालूमात और हर तिबके मसलन आम लोग, ताजिर, ज़मींदार और जानवर पालने वालों के लिए खुदा रा खुद भी पढ़ें और दूसरों तक पहुंचाने का फ़र्ज़ अदा करें. तो मैंने ये पढ़ी थी ये और मैंने आप तक पहुंचाने का भी फ़र्ज़ अदा कर दिया है. अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों को भी बताएं और अपना फ़र्ज़ अदा करें. ये इंसान को वैसे भी पता होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट सवाल हैं, लेकिन CSS के एग्ज़ाम में भी अक्सर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इनका जवाब. कुछ इस्लाम के बारे में भी इंसान को लाजमी पता होना चाहिए. तो देखते हैं कि कितने रुपए पर कितनी ज़कात लगती है, कितना टैक्स लगता है, ज़कात कितनी देनी होती है. तो 1 लाख पर 2500 रुपये, 2 लाख पर 5000 रुपये, 3 लाख पर 7500, 4 लाख पर 10,000 रुपये, 5 लाख रुपए पर 12,500, 6 लाख पर 15,000, 7 लाख पर 17,500, 8 लाख पर 20,000, 9 लाख पर 22,500, 10 लाख पर 25,000, उसके बाद 20 लाख पर 50,000, 30 लाख पर 75,000, 40 लाख पर 1 लाख, 50 लाख पर 1,25,000, 1 करोड़ पर 2,50,000 और 2 करोड़ पर 5 लाख ज़कात देनी होती है 2 करोड़ पर. उसके बाद ये सवाल है, हम ज़कात कैसे अदा करें. अक्सर मुसलमान रमज़ान मुबारक में ज़कात अदा करते. अल्लाह की तौफीक से ये तहरीरें हैं.
इसलिए पढ़ने के बाद आपको इस काबिल हो जाएंगे कि आप जान सकेंगे, या आप वीडियो देखने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप जान सकेंगे कि क्या मतलब कितनी हम ज़कात कैसे अदा कर सकते हैं। तो सोना चांदी, ज़मीन की पैदावार, माल तिजारत, जानवर, प्लाट, किराए पर दिए गए मकान, गाड़ियों और दुकान वगैरह की ज़कात कैसे अदा की जाती है, तो ये कुरान से ये हम आपको पढ़ के दिखाते हैं कि कैसे अदा करनी है। ज़कात का इनकार करने वाले काफिर हैं। ज़कात अदा ना करने वाले को क़यामत के दिन सख्त अजाब दिया जाएगा। ये हम कुरान से ये मतलब जो बताया गया है कुरान में ज़कात ना देने वालों के बारे में। ये 7 सूरह नंबर भी लिखी हुई है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। सूरह का नाम भी लिखा हुआ है, आयत नंबर भी लिखी हुई है। ज़कात अदा ना करने वाले कौम कैद साली का शिकार हो जाती है। ज़कात का मुनकर जो ज़कात अदा नहीं करता, इसकी नमाज, रोज़ा, हज सब बेकार हैं। ज़कात अदा करने वाले क़यामत के दिन हर किस्म के गम और खौफ से महफूज होंगे। ज़कात की अदायगी गुनाहों का कुफारा और दर्जात की बुलंदी का बड़ा ज़रिया है। ये MCQs में अक्सर पूछे जाते हैं यार, ये आपको बात ध्यान में रखनी चाहिए। ये इसको आप फजूल समझ के कहीं ये वीडियो को आप कट ना कर देना, ये स्किप ना कर बैठना। ये MCQs में पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन, तो इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। ज़कात का हुक्म हर मालदार मुसलमान मर्द या औरत पर ज़कात वाजिब है, खा वो बालिग हो या नाबालिग, अक्ल हो या गैर अक्ल, बशर्त ये कि वो साहिब निसाब हो। नोट, सूद, रिश्वत, चोरी, डकैती और दीगर हराम ज़राए से कमाया हुआ माल, इनसे ज़कात देने का बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ़ हलाल कमाई से दी गई ज़कात काबिल कबूल है। अब सवाल पूछा जा सकता है कि ज़कात कितनी चीज़ों पर है। ज़कात 4 चीज़ों पर फ़र्ज़ है। सोना चांदी, नंबर 2 ज़मीन की पैदावार, नंबर 3 माल तिजारत, नंबर 4 जानवर। सोने की ज़कात, अगर हमारे पास सोना है तो उसकी कितनी ज़कात होगी, तो वो है 87 ग्राम यानी 7.5 तोले सोना पर ज़कात वाजिब है। उसके बाद ये नोट फरमाइएगा कि सोना महफूज जगह या इस्तेमाल में हर एक पर ज़कात वाजिब है। उसके बाद चांदी की ज़कात, चांदी की ज़कात है जी 612 ग्राम यानी 52.5 तोले चांदी पर ज़कात वाजिब है, इससे कम वज़न पर नहीं। और ज़कात की शरह क्या है? ज़कात की शरह बलियाज कीमत या बलियाज वज़न 2.5% है। ज़मीन की पैदावार पर ज़कात, मसनूई ज़राए से सराब होने वाली ज़मीन की पैदावार पर अशर 20वां हिस्सा देना होगा, वरना है। कुदरती ज़राए से सराब होने वाली पैदावार पर शरह ज़कात 10वां हिस्सा है। उसके बाद ज़राई ज़मीन वाले अफराद गंदम, मकई, चावल, बाजरा, आलू, सूरजमुखी, कपास, गन्ना और दीगर किस्म की पैदावार से ज़कात यानी अशर 20वां हिस्सा हर पैदावार से निकाले। ये ना मुख्तलिफ मज़हब के बारे में क्वेश्चन हो सकते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ना ये अमूमन इम्तिहानों में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसमें किसी किस्म का कोई मज़हब का फ़र्क नहीं रखा। मैंने बस आपको बताना है कि ये वाले सवाल अगर आ जाएं तो इनका जवाब ये होगा, क्योंकि वो टेस्ट बनाने वाले मज़हब को नहीं देखते, वो जस्ट जो उनके बताया जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, वो बस उसी को देखते हैं। तो ये अब मुझे नहीं मालूम कि ये किस मज़हब से ये सवाल हैं या क्या है। बस मुझे आपको ये बताना है कि ये सवाल हैं और ये इनके जवाब हैं, और ये इम्तिहान में पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं ऊँटों की ज़कात। 5 ऊँटों की ज़कात 1 बकरी और 10 ऊँटों की ज़कात 2 बकरियाँ हैं। 5 से कम ऊँटों पर ज़कात वाजिब नहीं। भैंसों और गायों की ज़कात, 30 गायों पर 1 बकरी ज़कात है। 40 गायों पर 2 साल से बड़ा बछड़ा ज़कात दें। भैंसों की ज़कात की शरह भी गायों की तरह ही है। उसके बाद भेड़ बकरियों की ज़कात, 40 से 120 भेड़ बकरियों पर 1 बकरी ज़कात है, और 120 से लेकर 200 तक 2 बकरियां ज़कात हैं। 40 बकरियों से कम पर ज़कात नहीं।
किराए पर दिए गए मकान पर ज़कात। किराए पर दिए गए मकान पर ज़कात नहीं, लेकिन अगर इसका किराया साल भर जमा होता रहे जो निसाब तक पहुंच जाए और इस पर साल भी गुजर जाए और फिर इस किराए पर ज़कात वाजिब है। और अगर किराया साल पूरा होने से पहले खर्च हो जाए तो फिर ज़कात नहीं। शरह ज़कात 2.5% ही होगी। गाड़ियों पर ज़कात। किराए पर चलने वाली गाड़ियों पर ज़कात नहीं, बल्कि इसके लिए इसके किराया पर है, वो भी इस शर्त के साथ कि किराया इस साल भर जमा होता रहा है और निसाब तक पहुंच जाए। नोट फरमाइएगा, घरेलू इस्तेमाल वाली गाड़ियों, जानवरों, हिफाजती हथियार, मकान वगैरह पर ज़कात नहीं। सामान तिजारत पर ज़कात। दुकान किसी भी किस्म की हो, इसके सामान तिजारत पर ज़कात देना वाजिब है, इस शर्त के साथ कि वो माल निसाब को पहुंच जाए और इस पर 1 साल गुजर जाए। इसमें भी एक नोट है कि दुकान के तमाम माल का हिसाब करके इसको 40वां हिस्सा ज़कात दें, यानी दुकान की इस आमदनी पर ज़कात नहीं जो साथ साथ खर्च होती रहे। सिर्फ इस आमदनी पर ज़कात देना होगी जो बैंक वगैरह में पूरा साल पड़ी रहे और वो पैसे इतने हों कि इनसे 52.5 तोले चांदी खरीदी जा सके। प्लाट या ज़मीन पर ज़कात। जो प्लाट मुनाफा हासिल करने के लिए ख़रीदा है इस पर ज़कात होगी। ज़ाती इस्तेमाल के लिए ख़रीदा गया प्लाट पर ज़कात नहीं है। किस किस को ज़कात दी जा सकती है? माँ बाप और औलाद के सिवा सब को ज़कात के मुस्तहिक़ हैं। मुसलमानों को ज़कात दी जा सकती है। वालिदैन और औलाद पर असल माल खर्च करें, ज़कात नहीं। माँ बाप में दादा दादी, नाना नानी और औलाद में पोते पोतियाँ, नवासे नवासे भी शामिल हैं। ज़कात के मुस्तहिक़ लोग: नंबर 1 मसाकीन, नंबर 2 हाजतमंद, नंबर 3 गरीब, नंबर 4 ज़कात वसूल करने वाले, नंबर 5 मकरूज़, नंबर 6 कैदी, नंबर 7 मुजाहिदीन और नंबर 8 मुसाफिर। सवाल: ज़कात के लुग़वी मानी बताइए। पाकी और बड़ो तरीके हैं। ज़कात की शरई तारीफ़ कीजिए। माल मखसूस का मखसूस शराइत के साथ किसी मुस्तहिक़ ज़कात को मालिक बना देना। कितना सोना हो तो ज़कात फ़र्ज़ आती है? 7.5 तोला या इससे ज़्यादा हो। उसके बाद कितनी चांदी हो तो ज़कात फ़र्ज़ होती है? 52.5 तोला या इससे ज़्यादा हो। कितना रुपया हो तो ज़कात फ़र्ज़ होती है? इसकी मालियत 52.5 तोला चांदी के बराबर हो। उसके बाद कितना माल तिजारत हो तो ज़कात फ़र्ज़ होती है? इसकी मालियत 52.5 तोला चांदी के बराबर हो। उसके बाद अगर कुछ सोना है, कुछ चांदी है, या कुछ सोना है, कुछ नकद रुपया है, या कुछ चांदी है, कुछ माल तिजारत है, इनको मिलाकर देखा जाए तो 52.5 तोले चांदी की मालियत बनती है। इस सूरत में ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं? जवाब क्या है जी? फ़र्ज़ है। उसके बाद चरने वाले मवेशियों पर भी ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं? जवाब है जी फ़र्ज़ है। अशरी ज़मीन की पैदावार पर भी ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं? जवाब फ़र्ज़ है। सम मोर क्वेश्चन, ये भी जनरल नॉलेज के हैं। विच कंट्री इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ फर्टाइल फील्ड? श्रीलंका। विच कंट्री इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ आइसलैंड कॉन्टिनेंट? आंसर ऑस्ट्रेलिया। विच कंट्री इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस? ये भी ऑस्ट्रेलिया है। विच कंट्री इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ लिलीज? आंसर कनाडा। विच कंट्री इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ गिफ्ट ऑफ द नाइल? Answer Egypt. Which country is called land of thousand lakes? Answer Finland. Which country is called land of morning calm? Answer South Korea. फिर क्वेश्चन नंबर 8 आता है, which country is called land of midnight sun? Answer Norway. Which country is called land of rising sun? Answer Japan. Which country is called land of mountain? Answer Nepal. Which country is called land of white elephant? Answer Thailand. Question: which country is called land of crossroads? Answer Belgium.
Belgium. Question: which country is called land of sick men of Europe? Answer: Turkey. Question: which country is called land of cockpit of Europe? Answer: Belgium. Question: which country is called land of pure people? Answer: India. Question: which country is called land of prophets? Answer: Palestine. Question: which country is called land of pilgrims? Answer: Saudi Arabia. Question: which country is called sugar bowl of the world? Answer: Cuba. Question: which country is called land of maple? Answer: Canada. उसके बाद ये भी कुछ इस्लामिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि होली प्रॉफिट वाज बोर्न इन 571 AD 22 अप्रैल। हज़रत हाजिरा वाज द मदर ऑफ हज़रत इस्माइल। जब प्रेसिडेंट नहीं होता तो मुल्क कौन चलाता है? इसका जवाब है जी स्पीकर चलाता है। ग़ज़वा खंदक में खंदक की लेंथ एंड विड्थ जो 10 किलोमीटर लॉन्ग, 22 फुट वाइड और 16 फुट डेप्थ। कलीमुल्लाह किसका लक़ब था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान तरबेला डैम। कायदे आज़म 14 पॉइंट्स की डेट, मतलब कि कब उन्होंने 14 पॉइंट्स ये दिए थे, 14 नुकात वो दिए थे जी 1929 को। मक्का वाज कॉन्क्वर्ड बाय द होली प्रॉफिट ऑन 8 हिजरी। हेडक्वार्टर ऑफ पाक आर्मी इज GHQ जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी। सन ऑफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आंसर है जी 3 थे, मतलब 3 बेटे थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के। क्वेश्चन है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आंसर जनरल कमर जावेद बाजवा। क्वेश्चन है कैमल नेम ऑफ हज़रत मोहम्मद ड्यूरिंग माइग्रेशन। आंसर है जी कस्वा। क्वेश्चन हज़रत आदम वाज थ्रोन इन विच कंट्री? आंसर श्रीलंका। क्वेश्चन विसाख मदीना 622 हिजरी। क्वेश्चन शिमला कॉन्फ्रेंस जून 1945। विच कंट्री हैज़ लार्जेस्ट बॉर्डर विद पाकिस्तान? तो इसका जवाब है जी इंडिया के साथ है पाकिस्तान का लंबा बॉर्डर, जो कि लंबाई है जिसकी 2912 किलोमीटर। उसके बाद आता है जी विच मिलिट्री अवार्ड बिलोंग टू ब्राइटन? आंसर विक्टोरिया क्रॉस। क्वेश्चन हाउ मैनी टाइम्स द नेम ऑफ होली प्रॉफिट इज मेंशन्ड इन द होली कुरान? आंसर 4। क्वेश्चन हज़रत आदम हैड सन्स एंड डॉटर्स। आंसर 3 sons and 2 daughters. Question which prophet sleeps 100 years and again woke up? Answer Hazrat Uzair. How many days Hazrat Yusuf remained in the well? Answer 3 days. Question only Sahabi mentioned in Quran is? Answer Hazrat Zaid bin Haris. Question members of Sarak? Answer 8. Speak up. Question है जी speakers of prophet title of which prophet? Answer Hazrat Shoaib अलैहिस्सलाम. Question the incident of Karbala took place in which Muharram? Answer 61 AH. Question height of Hazrat Adam अलैहिस्सलाम. Answer 90 feet. Question who imposed first martial law in Pakistan? Answer Ayub Khan 1958. Question
Aligarh got a status of college university? Answer: 1877 college and 1920 university. Question: Pak became a member of UNO on 30 September 1947. Toki between pass is between A and उसके बाद जनरल नॉलेज MCQs हैं. Rusting of iron involves oxidation. Light year is a unit of distance. Which city is famous for Chopal and Khusa? Peshawar. चप्पल एंड खुसा, तो वो है पेशावर. Which range lies along the border of Sindh and Balochistan province? Kirthar range. When did Hazrat Hamza embrace Islam? 5th Nabawi. What is the name of the camel which the Holy Prophet was riding in the migration of Medina? Kaswa. Which country is called the land of rising sun? Japan. Nuclear energy is dangerous to be used widely. 2. Albert Einstein was born in Germany. Sensitive layer of the eye is retina. और अब जो मैं आपको सवाल बताने जा रहा हूँ वो तो इंतहाई अहम सवाल हैं. इनको तो आप लाजमी गौर से सुनिएगा और याद भी कीजिएगा. बल्कि इन सवालों को छोड़िए, आप पूरी वीडियो देखिए और शुरू से लेकर एंड तक जितने भी मैंने ये सवालों के जवाब बताए हैं इनको बआसानी यार आप ज़हन में रखें. इतना बंदे को पढ़ने से याद नहीं होता जितना किसी की आवाज़ सुनने से या किसी के बोलने से याद होता है. इसलिए मैंने इतनी मेहनत से ये वीडियो बनाई है ताकि आपका फ़ायदा हो सके. इसमें मैंने आपको इंतहाई बहुत ज़्यादा मैंने क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं. तो आप देखते हैं कि लिस्ट वज़ीर आज़म पाकिस्तान. नंबर 1 पे आते हैं नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान 1947 से 1951 तक 51 तक. नंबर 2 ख्वाजा निज़ामुद्दीन 1951 to 1953. नंबर 3 मोहम्मद अली बोगरा 1953 to 1955. नंबर 4 चौधरी मोहम्मद अली 1955 to 1956. नंबर 5 हुसैन शहीद सहरवर्दी 1956 to 1957. नंबर 6 इस्माइल इब्राहिम चंडीगढ़ 1957 to 1957. नंबर 7 मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून 1957 to 1958. नंबर 8 नूरुल अमीन 1971 to 1971. नंबर 9 जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1973 to 1977. नंबर 10 मोहम्मद खान जुनेजो 1985 to 1988. नंबर 11 बेनज़ीर भुट्टो 1982 to 1990. नंबर 12 मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 1999 to 1992. 1993. नंबर 13 बेनज़ीर भुट्टो नंबर 13 बेनज़ीर भुट्टो 1993 to 1996. नंबर 14 मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 1997 to 1999. नंबर 15 मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली 2002 to 2004. नंबर 16 चौधरी शुजात हुसैन 2004 to 2004. नंबर 17 शौकत अज़ीज़ 2004 to 2007. नंबर 18 सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी 2008 to 2012.
Number 19, Raja Pervez Ashraf, 2012 to 2013. Number 20, Mian Mohammad Nawaz Sharif, 2013 to 2017. Number 21, Shahid Khaqan Abbasi, 2017 to 2018. 2017 to 2018. Number 22, Prime Minister Imran Khan, 18 August to 2018, और अब तक मतलब मौजूद हैं वही हैं। फिर जब वो चेंज होंगे तो फिर आपको नई वीडियो बना के मैं आपको दोबारा से ये सब बता दूंगा। तो देखते हैं कुछ और क्वेश्चन अगर बाकी हैं तो वो भी देख लेते हैं। ये कैपिटल्स हैं कुछ कंट्रीज़ के, वो भी आप देख लीजिएगा, पीपीएससी में आते हैं ये एग्ज़ाम्स में। द कैपिटल ऑफ तुर्की इज़ अंकारा, द कैपिटल ऑफ युगांडा इज़ कंपाला, द कैपिटल ऑफ चाइना इज़ बीजिंग, द कैपिटल ऑफ कुवैत इज़ कुवैत सिटी, द कैपिटल ऑफ मलेशिया इज़ कुआला लंपुर, द कैपिटल ऑफ यूएसए इज़ वाशिंगटन डीसी, the capital of Spain is Madrid, the capital of Italy is Rome, the capital of Australia is Canberra, the capital of Bulgaria is Sofia, the capital of Israel is Jerusalem, the capital of Iraq is Baghdad, the capital of Japan is Tokyo, the capital of UK is London, the capital of New Zealand is Wellington, the capital of Poland is Warsaw, the capital of Sri Lanka is Sriwijayawardena, Port and Colombo, the capital of Indonesia is Jakarta, the capital of Germany is Berlin, the capital of Egypt is Cairo, the capital of Angola is Luanda, the capital of Chad is N'Djamena, the capital of Finland is Helsinki, the capital of Kenya is Nairobi, the capital of Monaco is Monaco Valley, the capital of India is New Delhi, the capital of Yemen is Sana'a, the capital of Jamaica is Kingston, the capital of Chile is Santiago, and the capital of Switzerland is Bern, the capital of Kazakhstan is Nur Sultan, change in March 2019, the capital of Netherlands is Amsterdam, the capital of Lebanon is Beirut, the capital of Taiwan is Taipei, the capital of UAE is Abu Dhabi, the capital of Sudan is Khartoum, और पाकिस्तान का इन्होंने बताया वो था द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद। उसके बाद चंद और जनरल नॉलेज के इस्लामी सवाल हैं वो भी देख लेते हैं। टोटल गज़वात 27 हैं। कुरान मजीद में 12 गज़वात का जिक्र आया है। अहम गज़वात और वाक़यात और तारीख़: ग़ज़वा अबूआ 1 हिजरी, ग़ज़वा बदर 2 हिजरी, ग़ज़वा ओहद 3 हिजरी, ग़ज़वा खंदक 5 हिजरी, ग़ज़वा खैबर 7 हिजरी, ग़ज़वा मोता 8 हिजरी, ग़ज़वा तबूक 9 हिजरी, बैत रिज़वान 6 हिजरी, सुलह हदीबिया 6 हिजरी, फ़तह खैबर 6 हिजरी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।